In this class, we are going to study about the various types of reproduction that occur in the case of bacteria. So, the bacteria normally reproduce by two methods, and those differ depending on the condition or the type of environmental situation that the bacteria lives in. So, the first type is the asexual reproduction, and normally asexual reproduction takes place in favorable condition. And bacteria also reproduces through a method which is called as gene recombination. So it is not exactly a sexual method, but still it is somewhat like a sort, or you can say that it is sort of a sexual reproduction. So this gene combination it occurs in the case of sexual reproduction also. यानी कि ये जो gene recombination होता है, this occurs in the case of sexual reproduction, and here also gene recombination is occurring. So we can say that this gene recombination is a type of sexual reproduction or something equivalent to sexual reproduction, but it is not exactly sexual reproduction. So normally bacteria does sexual reproduction when the environmental conditions are not favorable, and bacteria does asexual reproduction and especially binary fission when the external conditions are very much favorable, that is the temperature is good, the food availability is there, likewise the pH value is not very high or low. So these type of, that is the asexual reproductive methods, take place when the environmental conditions are favorable for the bacteria, and the normal gene recombination or the sexual reproduction that occurs, it occurs during unfavorable conditions or the external conditions are not favorable for the reproduction or survival of the bacteria. So first let's have a look at the asexual method, and in this case we have to study about three methods, and those are sporulation, binary fission, and also this budding. So we are going to start from these three, that is the budding, binary fission and sporulation. So you must have studied about budding in Hydra. So in Hydra you might have studied in your 9th or 10th class that Hydra reproduces through budding. So a bud is a sort of protrusion, यानी कि ये पेरेंट के बॉडी से निकला हुआ एक छोटा सा प्रोटर्बेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि बडिंग में क्या हो रहा है, पेरेंट के बॉडी से, दिस इज अ पेरेंट बॉडी, और इस पेरेंट बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वी नो कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं. तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाए जा रहे, तो उसके जगह पे क्या है, वी हैव न्यूक्लियोइड इन प्लेस ऑफ nucleus. In the case of eukaryotes we have nucleus, here we have nucleoid, and this is the parent cell. Now this parent cell produces a protrusion, or it could be said to be as a baby bud or a protuberance. So this grows in size. You can see this protrusion is growing in size and ultimately it is separating. So this is the parent body, but one thing is to remember here is that the nucleoid before separating has replicated. यानी कि यहाँ पे आप देखो न्यूक्लियोइड जो है रेप्लिकेशन हुआ है, उनका एक कॉपी बना है, that is called as replication of DNA, and you will study more about replication of DNA in your 12th class in the genetics chapter. So यहाँ पर न्यूक्लियोइड जो दोनों के बीच में डिवाइड होगा, उसके पहले न्यूक्लियोइड की एक एडिशनल कॉपी बनी है, जिसे हम बायोलॉजिकली हम कहते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुआ है. सो न्यूक्लियोइड की एक कॉपी बन गई, दैट इज यहाँ पर दो न्यूक्लियोइड हो गए. अब यहाँ पे इन दोनों में से एक न्यूक्लियोइड बड में चला गया, दूसरा पेरेंट के अंदर रह गया, एंड दैट प्रोसीड्स देयरबाय द बड सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट सेल. So you can see here the parent cell is still there. Here also there was a parent cell, here also there is a parent cell, but we would see there that no parent cell would remain. So we can say that the parent cell is this, and this is the daughter cell. This has its own nucleoid, this has its own nucleoid. इसके अलावा जो भी चीजें बैक्टीरिया के अंदर होती है उनका डिवीजन हो जाता है as parallelly to these things. Now we see this. So a protrusion develops at one end, यानी कि बैक्टीरिया के एक एंड पे एक प्रोट्रूजन डेवलप हुआ है. द न्यूक्लियोइड रेप्लिकेट्स, यहाँ पर न्यूक्लियोइड जो जिसे मैंने रेड कलर से दिखाया है, दैट न्यूक्लियोइड हैज रेप्लिकेटेड. द न्यूक्लियोइड रेप्लिकेट्स and one nucleoid passes into the developing bud. You can see that one nucleoid is in the parent cell and the other has passed into the bud, and the bud grows in size. You can see the bud is growing in size and then contracts from the base,
contracts is important over here. As you can see, the bud is contracting from its base, not from its tip. So the bud is contracting from its base and ultimately the bud is separating and becoming a daughter cell and leaving the parent cell. So this process could be continued many times and therefore new daughter cells will be kept on creating. Now this was one method of asexual reproduction in bacteria, but more than budding, another type of asexual reproduction is observed in bacteria, and that is called as binary fission. So this is the most common method. Whenever we talk about bacteria, we normally say that bacteria does binary fission. Why? Because it is the most common method. That is, it is the most common method of reproduction in bacteria during favorable conditions. And remember this word, that is very important. बैक्टीरिया asexual reproduction में binary fission favorable condition में show करता है, not in unfavorable condition or when the external conditions are not viable for the bacteria. So this is the most common and in favorable conditions. These 2 points are important in the case of binary fission. अब binary fission बहुत सारे steps में होता है. तो यहाँ पर हमने देखा था कि न्यूक्लियोइड जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल है, that contains the genetic material और DNA of bacteria, उसने रेप्लिकेट किया था. तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोइड है जिसके अंदर होता है डीएनए, तो न्यूक्लियोइड का रेप्लिकेशन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द बैक्टीरियल सेल. हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया का सबसे बाहर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में होता है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर में होता है कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स या जिसे हम स्लाइम लेयर भी कहते हैं. तो हमें यहाँ पर मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है. तो यहाँ पर बैक्टीरिया का सेल में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इनवेजिनेशंस होते हैं या इंटरनली डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मीजोजोम्स. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोजोम. दिस इज द ब्लैक कलर्ड वाई शेप्ड स्ट्रक्चर. And now attached to the mesosome is what we have called nucleoid. So this nucleoid is attached to the mesosome which is attached to the plasma membrane. So यहाँ पे एक नॉर्मल सा सेल है जो हम देख रहे हैं. अब पहला स्टेप है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. इट प्रोड्यूसेस 2 न्यूक्लियोइड, यानी कि जब रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियोइड का तो 2 न्यूक्लियोइड बन जाएंगे. तो यू कैन सी कि 2 न्यूक्लियोइड्स हैव बीन फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस, दैट इज कॉपी बना है, रेप्लिकेशन हुआ है. और उसके बाद क्या हुआ है कि जो 2 कॉपीज यहाँ पर बने हैं दोनों सेपरेट कर गए हैं. तो 2 न्यूक्लियोइड यानी कि एक न्यूक्लियोइड की कॉपी बनी थी, और यहाँ पर हमने देखा था कि एक न्यूक्लियोइड चला गया था बड में यानी कि दूसरे सेल में. तो यहाँ पे भी दूसरे सेल में दूसरा न्यूक्लियोइड जाएगा, लेकिन उनके सेपरेशन के लिए यानी कि यहाँ पे दोनों न्यूक्लियोइड सेपरेट हो गए हैं. सो यहाँ पर इनके सेपरेशन के लिए मीजोजोम का सेपरेशन जरूरी है. सो एज यू कैन सी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो गया, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियोइड्स बन गए. द सेकंड स्टेप इज डिवीजन ऑफ मीजोजोम. तो ये जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है दैट इज द मीजोजोम, और ये मीजोजोम भी रेप्लिकेट किया. इफ यू कैन सी कि एक मीजोजोम है और दूसरा मीजोजोम है, यहाँ पर मीजोजोम भी सेपरेट होके 2 हो गए हैं. सो जब तक मीजोजोम सेपरेट नहीं होंगे तब तक जो 2 न्यूक्लियोइड बना है ये भी सेपरेट नहीं होगा. So these 2 nucleoids have been separated by the division or the separation of mesosome. So it separates the 2 nucleoids. तो यहाँ पे 2 nucleoids बने थे, यहाँ पर इन्होंने सेपरेट कर दिया उन दोनों न्यूक्लियोइड को. Now the third one is membrane synthesis. अब बैक्टीरिया को डिवाइड करना है तो उसे न्यू मेम्ब्रेन चाहिए. तो यहाँ पर ये और ये 2 मीजोजोम्स है, दोनों के बीच में सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मीजोजोम किससे जुड़ा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन से. तो जब सेल मेम्ब्रेन जब तक डिवाइड नहीं करेगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोले, लगभग बात सेम है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब सेपरेट करेगा तो दोनों मीजोजोम्स अलग होने लगेंगे. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अंदर की ओर है नया मेम्ब्रेन का सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड. तो न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसाइज हो रहा है इस रीजन में ऊपर से भी. तो अल्टीमेटली दोनों सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि और ये अंदर की ओर गड्ढा बनेगा और ये अल्टीमेटली 2 में सेपरेट हो जाएंगे. द लास्ट स्टेप इज द क्लीवेज एंड सेप्टम फॉर्मेशन.
सो क्लीवेज में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म है बैक्टीरिया का, वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। उसके बाद जो सेप्टम फॉर्मेशन है, सेप्टम फॉर्मेशन में न्यू बैक्टीरियल सेल वॉल का सिंथेसिस होता है। सो क्लीवेज से क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है बैक्टीरिया के अंदर, वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। उसके बाद क्या हो रहा है, सेप्टम फॉर्मेशन, सेप्टम फॉर्मेशन में न्यू सेल वॉल का सिंथेसिस होता है। सो दैट विल सेपरेट द बैक्टीरिया इनटू 2। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं एक पेरेंट सेल है और एक डॉटर सेल, लेकिन यहां पर तो पेरेंट सेल है ही नहीं, यहां पर दोनों के दोनों क्या है, डॉटर सेल्स है। तो जब दोनों के दोनों डॉटर सेल्स है तो यहां पेरेंट सेल रहा ही नहीं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड दिस बाइनरी फिजन। यानी कि बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, दोनों के दोनों डॉटर सेल्स हैं, लेकिन यहां पर एक पेरेंट सेल था और दूसरा था डॉटर सेल, लेकिन यहां पर दोनों ही डॉटर सेल्स हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ पर भी वो सारे प्रोसेसेस लगभग सेम होते हैं, यहाँ पे भी वो सारे प्रोसेसेस लगभग सेम होते हैं, लेकिन माइनर वेरिएशंस है। तो यहाँ पर ये 4 स्टेप्स हैं, दैट इज यहाँ पर डीएनए ने रेप्लिकेट किया तो उसे 2 न्यूक्लियोइड बन गए, फिर दोनों न्यूक्लियोइड सेपरेट हो गए, मीजोजोम भी सेपरेट हो गए, फिर दोनों मीजोजोम के बीच में नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया, और नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बनने के बाद क्लीवेज हो गया, और क्लीवेज के बाद हो गया सेप्टम फॉर्मेशन। तो क्लीवेज में क्या हो रहा है कि दोनों प्रोटोप्लाज्म, इनके और इनके प्रोटोप्लाज्म सेपरेट हो गए। उसके बाद जो हमारा सेप्टम फॉर्मेशन है, सेप्टम फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, न्यू सेल वॉल बन जाएंगे और ये दोनों बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएंगे। सो दीज टू आर एट द लास्ट दैट वी आर सीइंग इज द डॉटर सेल्स। So these two are daughter cells, but here we have a daughter cell and a parent cell. This is the difference between these two. एक और बात जो यहाँ पे हमें याद रखना है, यहाँ पर डॉटर सेल स्मॉलर है स्टार्टिंग में, बाद में डॉटर सेल ग्रो करके पेरेंट जितना बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर पेरेंट सेल लार्जर है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस इज अ स्मॉलर सेल, दिस इज लार्जर। So once this is larger and this is smaller, we can say that budding is asymmetrical. That is, both the products, parent and the daughter cells, are not equal in size. But here you can see that these both are almost equal in size. So this is the difference between, this is also a great difference between this budding and binary fission. So here equal in size है. It is a very important difference. That is, here both the daughter cells are equal in size. Here the parent cell and the daughter cell are not equal in size. One is larger and the other is smaller. So this was first 2 type of asexual reproduction. Now we have to understand the third type of asexual reproduction, and that is called as sporulation. Now we would study about the sporulation in bacteria. So in bacteria, not a single type of spore is formed, but rather there are many types of spores which are formed, and apart from these also there are many types of spores. But according to our NEET syllabus and at the NEET level, we have to study about these types of spores in bacteria, and also these types of spores are also formed in the case of fungi as well as in some alga. So these types of spore might come again as an example in fungi also, and maybe in alga also. So these are the normal types of spore that we have to study in the case of bacteria also, and also these type of spores like conidia or the oidea, these will be repeated in the case of fungi. So let's look at these types of spores one by one, and the most important, the most dangerous and the most resistant type of spore that we have to study is the endospore. So first let's start from there. So ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दीज आर वेरी रेजिस्टेंट। अगर आप इन्हें -100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस पे रखें तभी भी ये स्पोर्स खराब नहीं होते, ये स्पोर्स इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। दूसरी बात कि ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं नॉर्मली 2 टाइप के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। हमने सबसे पहले शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था, बैसिलस थे या कॉकस थे या स्टेफाइलोकॉकस या स्पाइरलम थे या स्पाइरोकीट्स थे या फिर जो बडिंग बैक्टीरिया थे। तो उस तरह के बहुत सारे शेप वाले बैक्टीरिया हमने पढ़ा था। उनमें से कॉकस और बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया में जनरली एंडोस्पोर को ऑब्जर्व किया जाता है।
और एंडोस्पोर जो मेन रेजिस्टेंट होता है उसके पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थिक लेयर ऑफ वॉल होता है जिसकी वजह से ये इतना रेजिस्टेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर थिक वॉल्ड, इनका जो वॉल है आप देख सकते हो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के एक्सोस्पोरियम तक, यहाँ पे बेसिकली ये इसका कवरिंग ही है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म। तो अगर आप इतनी दूर की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक ये एक तरह से वॉल या कवरिंग ही है। सो दीज आर द कवरिंग्स। तो इतना मोटा और स्ट्रॉन्ग कवरिंग है इसके पास। उसके अलावा दीज आर हाईली रेजिस्टेंट आल्सो एज आई सेड एंड डिहाइड्रेटेड। इन स्पोर्स के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है या मॉइस्चर कंटेंट होता है दिस इज वेरी वेरी लो, दैट इज व्हाई दीज आर ऑलमोस्ट ड्राई। So these spores are almost dry spores. Now capable of perennation and dispersal. So perennation का मतलब होता है survival during unfavorable conditions. For example, अगर बैक्टीरिया unfavorable condition में है तो वो मर सकता है, तो वो क्या करेगा, इस तरह का एंडोस्पोर का फॉर्म कर देगा। तो स्पेरिनेशन मीन सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी हो पाना। तो ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं दीज आर वेरी वेरी लाइट, तो आराम से एयर के साथ ये बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। आपने पॉलिनेशन में सुना होगा पॉलन ग्रेन्स होते हैं प्लांट्स में, तो जिस तरह एयर के साथ या विंड के साथ पॉलन ग्रेन्स कैरी हो सकते हैं उसी तरीके से बैक्टीरिया में ये जो स्पोर्स हैं ये कैरी हो सकते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी लाइट। तो इनका दो पर्पस है, एक है पेरिनेशन और दूसरा है डिस्पर्सल। पेरिनेशन मतलब सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, और जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे देन दीज स्पोर्स और दीज एंडोस्पोर्स विल जर्मिनेट और दीज विल ग्रो टू फॉर्म अ न्यू बैक्टीरियम, और ये डिस्पर्सल में भी हेल्प करेंगे, यानी कि जहां बनेंगे वहां से दूर तक ट्रेवल करने में मदद करेंगे बैक्टीरिया को। Now these are formed under unfavorable conditions, ठीक है, तो ये काफी unfavorable conditions में फॉर्म होते हैं। Now it is common in Bacillus and Coccus type। तो obviously हमने पढ़ा था कि Bacillus होता है रॉड शेप का बैक्टीरिया और Coccus होता है spherical या ओवल बैक्टीरिया। So these two types of bacteria form these endosperms। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक बैक्टीरिया के अंदर एक ही एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कई बार एक से ज्यादा एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि 2 to 4 एंडोस्पोर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो नॉर्मली एक एंडोस्पोर होगा एक बैक्टीरिया के अंदर और कभी कभी 2 से 4। अब ये जो एंडोस्पोर्स का पोजीशन होता है बैक्टीरिया के अंदर वो अलग अलग वेरी कर सकता है। सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, तो ये जो एंडोस्पोर है ये एंडोस्पोर मिडिल पे हो सकता है बैक्टीरिया के, या फिर इसे अगर सेंटर पे है तो इसे बोलेंगे मिडिल एंडोस्पोर। अगर ये एंड्स पे है तो यहां पर हम इसे बोलेंगे टर्मिनल एंडोस्पोर। अगर यही इन दोनों के बीच में है यानी कि समवट हियर, तो इट इज कॉल्ड एज सब टर्मिनल एंडोस्पोर। सो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द एंडोस्पोर इनसाइड द बैक्टीरिया वी हैव सब टर्मिनल, वी हैव टर्मिनल एंड वी हैव सेंट्रल एंडोस्पोर। So these are the 3 positions of endospores in a bacteria. So normally ये rod shaped या कॉकस टाइप के बैक्टीरिया में होते हैं। अब इनके बारे में हमें ये जानना है कि आखिर ये इतने रेजिस्टेंट क्यों हैं। तो रेजिस्टेंट तो पहला रीजन हमने पढ़ लिया कि ये है इतने सारे कवरिंग्स, यानी कि इनका वॉल इम्परमिएबल होता है, कोई एंटर कर नहीं पाएगा इसके वॉल को। तो इसलिए ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंट है। दूसरी बात कि ये डिहाइड्रेटेड है, यानी कि इनमें जो वाटर कंटेंट है बहुत बहुत कम है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं डाइपीकोलिनिक एसिड। तो ये जो डाइपीकोलिनिक एसिड होता है ये एक एंटीकोगुलेंट है। तो बायो में आप लोग आगे पढ़ोगे कि एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं। बेसिकली दीज थिंग्स आर स्ट्रक्चर्स जो कि लो टेम्परेचर पे या किसी केमिकल रिएक्शन में जो मीडियम है उससे सॉलिड नहीं होने देते हैं, यानी कि ये फ्लूइड मीडियम मेंटेन करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म सॉलिड हो जाएगा या स्पोर का साइटोप्लाज्म टोटली सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्पोर है ना -100 डिग्री भी सर्वाइव कर सकता है, -100 डिग्री सेल्सियस। तो यू कैन इमेजिन हाउ रेजिस्टेंट दीज आर।
तो उतने लो टेम्परेचर पे ये डाइपीकोलिनिक एसिड क्या करता है कि बैक्टीरिया को फ्रीज नहीं होने देता है। दैट इज इसका जो साइटोप्लाज्म है उस समय भी एक्टिव रहेगा, या फिर वो बहुत ज्यादा तो एक्टिव नहीं रहेगा लेकिन वो जिंदा रहेगा। और दूसरी बात कि इनमें मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, यानी कि अगर इनके अंदर जो फूड स्टोर है अगर इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो ये इनका फूड स्टोर खत्म हो जाएगा, ये मर जाएंगे टोटली। लेकिन इनमें मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है कि कई हफ्तों सालों तक ये सरवाइव कर सकते हैं। तो इन रीजंस की वजह से ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन, डाइपीकोलिनिक एसिड की वजह से, लाइकवाइज इनका वॉल इतना मोटा है, उसके अलावा इनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है। इन चारों मेन रीजंस की वजह से ये बैक्टीरिया इतने ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। इसके अलावा और भी रीजंस है लेकिन दैट इज बियॉन्ड एट दिस चैप्टर लेवल, क्योंकि वो जेनेटिक्स के पार्ट ऑफ से, तो जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें और रीजंस होते हैं, जैसे कि mRNA। RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसमें एक वेरिएशन होता है दैट इज कॉल्ड एज मैसेंजर RNA और mRNA। तो यहाँ पर mRNA भी एक्टिव नहीं होते। उसके अलावा यहाँ पे फास्फोरस और जो पोटेशियम होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑब्वियसली अदर रीजंस भी हैं जिनकी वजह से ये इतना रेजिस्टेंट होता है। सो फर्स्ट लेट्स लुक एट द वॉल और द कवरिंग ऑफ दिस सिस्ट और द स्पोर। तो सबसे बाहर में है एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम बना है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब है कि फैट या ऑयल है इसमें, और लिपिड्स और प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ बाइंडेड हैं और ये फॉर्म कर रहे हैं सबसे बाहर वाला लेयर। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, बाकी सारे लेयर स्मूथ है लेकिन ये लेयर काफी रफ है, यानी कि इस लेयर में स्फेरिकल शेप हो ये जरूरी नहीं है, यानी कि जो बाहर का एक्सोस्पोरियम लेयर है दिस इज नॉट अ स्मूथ। अदरवाइज आप देख सकते हो अंदर के सारे लेयर्स स्मूथ हैं, तो ये एक रफ लेयर है। उसके बाद है स्पोर कोट। तो इसके अंदर केराटिन के जैसे प्रोटीन्स होते हैं। तो आपके नाखूनों में, नेल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं दीज आर द केराटिन प्रोटीन्स। तो यहाँ पर केराटिन प्रोटीन तो नहीं है लेकिन केराटिन के जैसे प्रोटीन्स है, दैट इज केराटिन लाइक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट हियर। नाउ द अदर लेयर इज द कॉर्टेक्स। सो आपने देखा था कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है। जब हमने बैक्टीरिया का सेल वॉल पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर दो चीजें होती है, नाग और नामा, यानी कि जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और दोनों को पेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड लिंकेजेस से क्रॉस बॉन्डिंग हुई थी उन सभी में। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन वो जो वही लेयर है जो कि यहाँ पर पाया जा रहा है। फिर सेल वॉल, इनका जो कोर वॉल है ये नॉर्मल कोर वॉल या सेल वॉल की तरह नहीं है, ये नॉर्मली प्रोटीन से मिलके बना है। और आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का होता है, यानी कि लिपिड्स का होता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर जगह लगभग लिपिड्स का ही होता है। देन द साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म में ये डाइपीकोलिनिक एसिड होता है जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। यही साइटोप्लाज्म को फ्रीज होने से बचाता है, मरने से बचाता है। सो दिस डाइपीकोलिनिक एसिड प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया एट वेरी लो टेम्परेचर्स लाइक -90 और -100 डिग्री सेल्सियस। और ऑब्वियसली बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो हमें पता ही है कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, उसके जगह पे क्या होगा, न्यूक्लियोइड। तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर है हमारे पास न्यूक्लियोइड। So these are the structure of the normal endospore। तो नॉर्मल एंडोस्पोर में इतने सारे स्ट्रक्चर तो बस वॉल हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका वॉल ऑलमोस्ट इम्परमेबल होता है क्योंकि इतने सारे लेयर्स का इसके पास कवरिंग है या वॉल है। नाउ वी कम टू द अदर टाइप्स, और ये सब स्पोर्स काफी सिंपल होते हैं। इसके बाद हमने जितने भी इस टाइप के स्पोर्स पढ़ना है ये सारे स्पोर्स इतने रेजिस्टेंट नहीं होंगे बिकॉज इतने थिक, इतने स्ट्रॉन्ग टाइप के स्पोर्स ये सारे नहीं होते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल। कोनिडिया कहाँ होते हैं, माइसीलियल बैक्टीरिया। अब कुछ बैक्टीरिया फंजाई की तरह दिखते हैं, यानी कि उनमें नॉर्मल ब्रांचिंग टाइप का पैटर्न पाया जाता है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया कुछ इस तरह से होते हैं, उनमें नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। सो दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो इसी माइसीलियम का एक ब्रांच को हम बोलते हैं हाइफा, और हाइफा के ऊपर एक ब्रांच होता है जिसे हम बोलते हैं कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोफोर। उसी कोनिडियोफोर पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो कोनिडिया चेन्स में बनते हैं, यानी कि यू कैन सी फ्रॉम देयर एक कोनिडिया जो है ना एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड और धीरे धीरे ये बाद में सेपरेट होंगे, यानी कि ये कोनिडिया चेन्स में बनते हैं कोनिडियोफोर्स पे। तो कोनिडियोफोर क्या होता है, हाइफा का एक स्पेशल ब्रांच होता है। अब यही कोनिडिया हम फिर से पढ़ेंगे फंजाई में भी, क्योंकि फंजाई में भी कोनिडिया का फॉर्मेशन
होता है। नाउ कोनिडिया के बाद है ओइडिया। तो कोनिडिया और ओइडिया काफी सिमिलर है, यहां भी ब्रांचिंग से ही हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कोनिडिया सारे जुड़े हुए हैं एक साथ, लेकिन यहां पर ओइडिया सेपरेट हो गए हैं, यानी कि हाइफल सेल्स में क्या हो गए हैं, सेपरेशन से बने हैं। These are formed by breaking off, यानी कि माइसीलिया के जो सेल्स है ना या हाइफे के जो सेल्स है उनमें ब्रेकिंग ऑफ हो गए, लेकिन आप देख सकते हो ये कोनिडिया जुड़े हुए हैं अभी भी, लेकिन ओइडिया क्या है, ओइडिया एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। These are breaking off from each other, यानी कि जो हाइफा है, ये सारा पार्ट्स को हम हाइफा कहते हैं, तो इससे ये सारे सेपरेट हो गए हैं, इससे ब्रेक ऑफ हो गए हैं। सो इनमें होता है ब्रेकिंग ऑफ। और हाइफे के टिप्स पर, यानी कि ये जो हाइफे है, जैसे कि दीज आर द हाइफे, सो हाइफे के जो टिप्स हैं, यानी कि जो हाइफे का एंड पोर्शन है, जैसे कि हाइफे का टिप हो गया यहाँ 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 यहाँ, तो इनके टिप्स पर ब्रेकिंग ऑफ हो रहा है, उससे बन रहा है कोनिडिया या फिर उससे बन रहा है ओइडिया, या इसका दूसरा नाम क्या है, आर्थ्रोस्पोर्स। So these are the two most common type of spores apart from the endospores. So we will study about these three spores again in fungi, क्योंकि फंजाई में भी इनका फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा और भी स्पोर्स आएंगे, जैसे कि क्लैमाइडियोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स, और भी टाइप के स्पोर्स पढ़ने हैं हमें फंजाई में, लेकिन ये स्पोर्स फिर से आएंगे फंजाई में एग्जाम्पल के लिए। नाउ सिस्ट, अब ये सिस्ट और एंडोस्पोर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि सिस्ट कब बनते हैं, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। सो वो भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, और इनके भी थिक वॉल होते हैं, यानी कि सिस्ट और एंडोस्पोर काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन सिस्ट उतना रेजिस्टेंट नहीं होता है जितना कि एंडोस्पोर रेजिस्टेंट होता है। इसके पास भी थिक वॉल है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, बट इसके पास जो हमारा सिस्ट है इतना थिक वॉल नहीं होगा, थिक वॉल होगा लेकिन नॉट एज मच एज द एंडोस्पोर बैक्टीरिया, और एंडोस्पोर उसकी जितना थिक वॉल यहाँ पर नहीं होगा। अब आते हैं स्वॉर्म सेल्स। सो स्वॉर्म सेल्स जब भी बैक्टीरिया को बहुत ही रैपिडली डिवाइड करना होता है, और व्हेनेवर अ बैक्टीरिया वांट्स टू डिवाइड वेरी रैपिडली, इन दैट केस स्वॉर्म सेल्स आर फॉर्म्ड। सो एज यू कैन सी, फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिवीजन। तो यहां पर जब भी बहुत तेजी से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करना चाहेगा तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिस्पर्सल के लिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्लैजेला या फ्लैजेलेट। स्वॉर्म सेल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इनमें फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला का काम होता है बैक्टीरिया को मूव कराना, यानी कि बैक्टीरिया मूव करेगा तभी तो एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्सल होगा। डिस्पर्सल का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट या फिर ट्रांसफर। तो फ्लैजेला बैक्टीरिया के अंदर जो होगा या बैक्टीरिया के सरफेस पे होगा, वो बैक्टीरिया को मूव कराएगा। तो जब बैक्टीरिया बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करना चाहेगा और दूर तक मूव करना चाहेगा तो वो स्वॉर्म सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज्यादा तेजी से रिप्रोडक्शन होगा, और डिस्पर्सल यानी कि दूर तक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लैजेला है बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया खुद से मूव कर सकता है। सो दिस इज व्हाट इज स्वॉर्म सेल। नाउ वी कम टू ज़ूओग्लिया। तो ज़ूओग्लिया हमने पढ़ा था पहले कि जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स था, ग्लाइकोकैलिक्स को हमने दूसरा नाम दिया था म्यूसिलेज, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के चारों तरफ सबसे बाहर में होता है म्यूसिलेज या ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया के बाहर में सबसे बाहर में होता है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर अंदर में सेल वॉल, और उसके अंदर में होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है, ये ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर जो होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में थिक हो जाता है, यानी कि इसे हम ग्लाइकोकैलिक्स बोले या इसे हम म्यूसिलेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत थिक हो जाएगा, यानी कि पहले पतला सा म्यूसिलेज होगा और अनफेवरेबल कंडीशन में थिक म्यूसिलेज होगा। तो जब बैक्टीरिया के अंदर थिक म्यूसिलेज का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं ज़ूओग्लिया या ज़ूओग्लिया स्टेज कहते हैं उसे हम। तो ज़ूओग्लिया का फॉर्मेशन कब हो रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा म्यूसिलेज है या ग्लाइकोकैलिक्स है
वो जब थिक हो जाएगा तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा किससे? केमिकल से और डेसिकेशन से। यानी कि अगर बहुत ही ड्राई इन्वायरमेंट है तो डेसिकेशन का मतलब होता है वो बैक्टीरिया को सूखने से बचाएगा। इट विल नॉट अलाउ द बैक्टीरिया टू लूज मॉइस्चर और इट विल हेल्प इन रिटेनिंग ऑफ मॉइस्चर। So in that case, this mesoglea or this glycocalyx or mucilage protects the bacteria from desiccation and chemicals. अब ये जो बैक्टीरिया है अगर कंडीशंस फेवरेबल हो गए तो म्यूसिलेज फिर से हट जाएगा या पतला हो जाएगा। लेकिन अगर म्यूसिलेज नहीं हटता है, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं होते हैं तो ज़ूओग्लिया के बाद एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। यानी कि एंडोस्पोर के फॉर्मेशन से पहले बैक्टीरिया इज एट द ज़ूओग्लिया स्टेज। ज़ूओग्लिया स्टेज में बैक्टीरिया पहले कोशिश करेगा कि हम म्यूसिलेज से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, यानी कि थिक म्यूसिलेज से बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर बैक्टीरिया खुद को म्यूसिलेज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया बनाएगा एंडोस्पोर। तो बेसिकली एंडोस्पोर का फॉर्मेशन बैक्टीरिया के लिए लास्ट ऑप्शन होता है। एंडोस्पोर से ज्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जब बैक्टीरिया को थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो ज़ूओग्लिया स्टेज पे होता है। ज़ूओग्लिया स्टेज में भी अगर अनफेवरेबल कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं तो बैक्टीरिया चला जाएगा सीधा एंडोस्पोर फॉर्मेशन के लिए। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स दैट वी हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू आवर नीट सिलेबस। So there are lots of other types of spores. We will study that under alga and under the fungi chapter, and also a few other examples like protista. So basically there are a few other types like the chlamydiospores or the sporangiospores or basidiospores or the other types or asperspores. So these are other types of spores. So we will study those, and these are some of the most common examples of spores which come under bacteria as well as some other examples. So these are the normal common spores of bacteria, and we have completed the bacterial spores, and we will also study about some other type of spores. So this part completes the asexual reproduction of bacteria. यानी कि यहाँ पर बैक्टीरिया का asexual reproduction complete हो गया है, और अब हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया में sexual reproduction, यानी कि उसे हमने कहा था जीन रिकॉम्बिनेशन। तो बैक्टीरिया के केस में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलेंगे जीन रिकॉम्बिनेशन। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट जीन रिकॉम्बिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।